मेरे पास एक गाना आया निंजा, मेरा दोस्त मेरा भाई ठोकदा रहा, उसकी म्यूजिक वीडियो करी और वो फटी। पंजाबी में बोलते हैं ना, उन्होंने तक पाती। Because I think once you become a commercial artist, your life changes dynamically. This is where I spend at least 5 hours of my day. I get up in the morning, I come here. जिम है और यही काम है। और ये काम है। तो मेरी टीम यहाँ बैठ जाती है, मैं इधर आ जाना। ये नहीं साडे पप्पू जी, ये ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5 रुपए ਦੇ 2 कुलचे। ਅੱਜਕੱਲ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਗਦ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕੋ, ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖਿਸਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। सिद्धू मूसेवाला भाई के साथ जो हुआ, do you miss him? Had you spoken to him? Sidhu was a very dear friend of mine. First song he wrote commercially, उसका नाम था License. As a lyricist, वो मैंने ही डायरेक्ट किया। है दास्तां लम्मी कहानी 3 सदियां दी, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੀ। ਹੈ ਦਾਸਤਾਂ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੇ ਗੂੰਜਦੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਚੀਰ ਦੇ ਬੋਲ। ਹੈ कोई जो नितरे मैदान अंदर है मंग सीस दी। एक लाइन कहकर आपको ये इसका जो आंख में आंसू आया ना, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। प्यार च हार के जित के बंदे, जित के नहीं हार। सत श्री अकाल भाजी, वेलकम टू द बॉम्बे पटियाला एडिशन। Thank you so much for having us भाजी। This is the first time हाँ जी we have a supercar on the show अरे क्या बात है and we have a superhuman also on the show। नहीं बस ये आम जी ठीक है। किस तरफ ले बताओ? इत्थों राइट भाई जी। ये आपका हुड है? हाँ जी घर है भाजी इत्थे। This is where I grew up. This is right next to the university and both my parents are professors। हाँ जी, तो वो उनका बस यही लाइफस्टाइल था कि ultimate goal is to buy a house right next to the university। सही बात है। This is the first house, like the only house we ever had। I grew up in that house, I still live in the same house। तो देखिए हम नई शुरुआत कर रहे हैं तो गुरुद्वारे होके आते हैं जरूर भाजी, और फिर आपका घर भी देख लेंगे। हाँ जी भाजी जरूर। देखिए भाजी, वी आर थैंक्स टू आवर परफॉर्मेंस पार्टनर कैस्ट्रॉल एज। हाँ जी भाई हम गुरुद्वारा जा रहे हैं तो ये हाँ बात जी। तो मेरे को पूछनी पड़ेगी, कितने रिलीजियस हो आप? My dad's a Hindu, my mom's a Sikh, so I was raised with the values of both the cultures। क्या बात है। तो ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ holds a lot of significance in our culture ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਫਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਾਈਟ ਨਿਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਨਸ ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਟਿਸਟ योर लाइफ चेंजेस डायनामिकली। फॉर इंस्टेंस जैसे हम चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जिन शहरों में आपने स्ट्रगल किया है, जिन शहरों में यू वर नोबडीज एंड देन यू बिकम सक्सेसफुल एंड देन दैट सिटी ट्रीट्स यू डिफरेंट। लेकिन पटियाला में ऐसा नहीं है। पटियाला में ऐसा है कि जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल पे यहाँ गलियों में घूम रहे थे, इन्हीं गलियों में आज ऐसे घूम रहे हैं। सो V10 लेके हम यहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड लोग हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली मुझे देखने में आया है कि पंजाब की एक बहुत ही वेलकमिंग वाइब है। हाँ जी, ये सिंगिंग कम्युनिटी और यहाँ की म्यूजिक कम्युनिटी में भी ऐसा रहा है कि हमेशा? हाँ जी भाजी, मतलब ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ हमारे यहाँ कहावत है कि प्यार से ना भले ही गन्ने की ट्राली अपने घर में उतरा लो ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੰਨਾ ਪੱਟਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਤੇ ਗਰਾਰੀ ਪਾਸ ਗਈ ਫਿਰ ਪਾਸ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਗਈ। आप ये बताओ हाँ जी कि अरदास और सेवा हाँ जी में कितना आपका टाइम जाता था और कितनी शिद्दत से आप जाया करते? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। That sometimes you look at your life and you go, yaar, I didn't even imagine that my life will be this blissful। Obviously everybody hopes and I can't say, oh, I manifested this और ये होना ही था, because obviously everybody has great dreams। हाँ जी। तो जब कुछ हो जाता है ना तो
for you it's a wake up call कि यार there is a higher power there is somebody who is in charge. ये सपना था क्या? हाँ जी, ऐसा एक I think सुपर कार होगी? हर लड़का ना अपने घर में एक पोस्टर लगा के रखता है इस गाड़ी का, हाँ, है ना, but not many people are lucky enough or blessed enough to actually you know from wallpapers to wallpaper. मैंने स्टोरी डाली थी मैंने एक और कार जब अपनी गाड़ी की फोटो खींच के अपने फोन पे वॉलपेपर लगाया था, तो आई वाज लाइक यार ये दिखा दो हमको। we naturally aspirated. तो मेरे को बताओ कि बचपन से ये सोचा था कि हीरो बनना है? हाँ जी भाई, I grew up, I wanted to be an actor. तो my father was a playwright, he was a theater artist. हमारे घर में ना जो performance arts was like वो household का पार्ट ही था, तो घर में plays की rehearsals चलती रहती थी. My dad was director youth welfare in the university. So बहुत सुंदर। जब youth festival होता था, youth festival की जो rehearsals होती थी, वहाँ वो रिहर्सल्स देखते ही बड़े हुए ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਮਮਿਕਰੀ ਗਾਣੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ सबकॉन्शियसली देखते होंगे सी एंड वी हमारा जैसे 2 महीने 3 महीने रिहर्सल्स होती हैं तो वो 3 महीने हमारी जिसको कह सकते हैं कि हम खेलते नहीं थे, हम वही चीज़ों को देखते थे. सेकंड यहाँ पर भी मेरे को ये समझना है कि आपकी इंग्लिश में कितनी क्या हालत थी? माई इंग्लिश वॉज रिलेटिवली गुड. ओके. उसका कारण ये था वेंट टू वेरी नाइस स्कूल, क्योंकि माई फादर वॉज अ प्रोफेसर. को था कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अगर पैसे कम भी हैं तो माई डैड वुड टेक पर्सनल लोन्स For real? so that he could send us to the best school in Patiala. In a weird way, I went to a very nice school, very posh school, but we knew that we were pushing boundaries. कि this is where our sort of financials are being pushed. Yeah. तो लोन लेके like he would send us to the school. तो थोड़ा ऐसा था कि ਜਿਹੜਾ exposure ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ exposure. तो I came theater, sports, like I was well aware. I did not have enough money to sort of go on those trips and you know live that life, but I was aware कि ये life भी है. कैसे थे पढ़ाई में आप? पढ़ाई में थोड़ा नलायक था मैं. नलायक? हाँ, मतलब नलायक सीगा ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ consciously ਨਲਾयक ਸੀ. I had ADHD. Same bro. Welcome भाई. Oh man, what a chaos. लेकिन डायग्नोसिस कभी हुआ? When I went to Australia and I was studying psychology. वहाँ जब पढ़ा कि तो मेरी प्रॉब्लम है. Spectrums पे हमें I'm working on it. Even though you can't really fix it, you can only just try and have a habit. So ऐसा है कि ultimately ADHD you will fail. आप वो रूटीन लाओ लेकिन रूटीन कर ना पाओ. तो ADHD का जो मेरा फंडा है, वो जो मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं कि आपको रूटीन की आदत नहीं बनानी. योर आदत शुड बी हाउ टू गेट बैक इन रूटीन. So you're always going off rails. How to get back on rails is your life. But I was good in performance arts. जो creative चीज़ें थी उनमें मैं देखा I would be vocal in debates. मैं poetry करता था, poetry लिखता था. तो eventually that kind of transitioned into my direction. बचपन की कोई poetry याद हो तो सुनाओ. बाजी ਜਦੋਂ ना 300 साल जब खालसा दिवस का 300 साल हुए थे, I was very young. ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕੋਣ ਬੂਟ ਲਾ ਲਾਂ. ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਦਾਸਤਾਂ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੀ, ਹੈ ਦਾਸਤਾਂ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੇ ਗੂੰਜਦੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਚੀਰ ਦੇ ਬੋਲ, ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਨਿੱਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੰਗ ਸੀਸ ਦੀ. ਤੇ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਲਵਾ ਸੀ. I'm sorry, मैं बहुत छोटा था और इससे आगे मैं भूल गया. हाँ जी, क्योंकि मुझे पापा ने समझाया था कि ये 3 सदियां पुरानी कहानी है कि चिड़िया ਨੂੰ बाज बनाने दी, कि चिड़ियों को लेके बाज बनाया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, कि जो उन्होंने शीस मांगे थे 5 प्यारियां तो. सो और पटियाला में वो सेलिब्रेट भी बहुत बड़ा हुआ था. हाँ जी, आई रिमेंबर सारे किते ना 300 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ. ਕੌਣ ਸਾ ਸਕੂਟਰ ਥਾ? ਯਾਦ ਹੈ, ਵੈਸਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਵੈਸਪਾ PB11E483 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਲਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ. ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਕੂटर लेके जाना, पीछे से नट खोल के जो बैक नहीं होती थी स्कूटर की वो उतार देनी, फिर जब घर आना फिर लगा देनी बैक और पापा ने स्कूटर दे देना. क्या बात है. और साथ में भाई बहन मतलब कितना साथ देते थे इन सब. छोटा भाई था भाजी, मैं छोटे तो जो बड़ा भाई होता है ना वो भाजी छोटे को ऐश करवाता है, जो बड़े ने ऐश नहीं की. सही बात. I remember when I was in Australia, I saved some money to
बाय माई कार, लेकिन मैंने वहाँ गाड़ी नहीं ली। मेरा छोटा भाई तब +1 में हुआ था, तो फिर मैंने उसको इंडिया में गाड़ी लेके दी थी। तो और मैं ऑस्ट्रेलिया में बस में था, ये सोच के कि मुझे कौन देख रहा है, मैं तो बस में भी ठीक हूँ। लेकिन पंजाब में आई बॉट हिम एन SUV, और I'm rebuilding that SUV. You still have it? I still have it. It was a Tata Safari. क्या बात है? We are rebuilding that SUV. क्या किल्लत थी या बस मिडिल क्लास आप लोग थे? नहीं बाजी, ये ऐसे ही होता है। मतलब जैसे I'll give you an example, गाड़ी लेनी थी ना, तो पापा ने सेंट्रो ली थी। ये पहली गाड़ी की पहली गाड़ी क्या है ना? बात? तो नहीं, पहली गाड़ी पापा हमारे पास थी मारुति 800। वो जैसे सेकंड हैंड पुरानी मारुति थी, जो पहली नई गाड़ी ली थी। हाँ जी, दैट वाज अ सेंट्रो। हाँ और तब ना जेन भी आती थी, हाँ जी, हाँ जी। एंड जेन वाज लाइक Status symbol, yeah, yeah. थोड़ी सोहनी लगती सी ना जेन। मॉडिफाई भी करवाते थे। हाँ, तो हमने बहुत बोला पापा जेन ले लो, हाँ। जेन च टायर पावांगे मोटे है ना। कहंदे इसीलिए नहीं, तो लेते थे हाँ, लोग Zen। कि प्रोफेसर हाँ मैं तो नहीं थे। फिर सेंट्रो ली, और सेंट्रो में फिर म्यूजिक सिस्टम नहीं रख सकते थे। तो आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली हैड अ वूफर इन माय कार वाज व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया। जब मैंने अपनी गाड़ी ली, अच्छा पापा आए हुए थे मेरे पास, मैं कहा पापा आज मैं वूफर लवाऊंगा अपनी कार च, ते तुसी मैनू मना नहीं कर सकते। तो हमारा नया सेगमेंट है स्टे अहेड पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल एज। हाँ जी। तो ये बताओ कि आप ज्यादा क्या प्रेफर करते हो, सिंगिंग की एक्टिंग, एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन की म्यूजिक वीडियो? ओ भाई, जी वैगन के लैम्बोर्गिनी। आई डोंट, दोनों चीजें भाई। हाँ ना? हाँ जी, हाँ जी, दोनों। ईटिंग आउट या एट होम? एट होम ऑलवेज, Always ना? ऑलवेज भाजी। वेजिटेरियन घरे सौखा, आलू गोभी मिल जे कमाल हो जूगी, साग बात। मिल जे कमाल हो जूगी, राजमा मिल जान, मतलब घर दी ओहो। रोटी मम्मी ने बनाई होवे ते क्या ही बात है भाजी। ये छोटे आनंद आपने अभी भी जीवित रखे, मैं देखता हूँ, चाय ते बिस्किट, हाँ, और ये इनमें कितना आनंद आता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਸੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ नहीं। नई बात, मैं वही बात बता रहा था ना, योर सक्सेस के नॉट डिटरमिन क्या खाओगे क्या डालोगे। सही बात है। सेडान या एसयूवी? SUV भाई, SUV? SUV। तो भाई चेक इट आउट या गाल नहीं कटनी? चेक इट आउट भाई, Check it out? चेक इट आउट। चेक इट आउट की क्या कहानी है भाई, इतना वो वायरल गाना है? हमने सोचा नहीं था भाई, हम तो हर गाने ही ऐसे बनाते हैं कि वायरल होगा। अरे कुछ पर फॉर्मूला वो- तो होगा आपके पास। नहीं भाजी, सच्ची? सच्ची नहीं भाजी। मैं तो देखो मैं बताता हूँ, पहले जब गाने करने शुरू किए तो वो सोचे बिना किए, है ना। कोई सिंगिंग वाज नॉट माय करियर, हाँ। एंड आई नेवर प्लान्ड टू बी अ सिंगर। तो गाल नहीं कटनी, सब फड़े जाएंगे, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਮਸਤੀ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। उसमें तो नाच भी रहे हो आप थोड़ा बहुत, बढ़िया मजा और लेके। with time that became a career. या With time, you know, you started doing shows, and then with time sound changed. या तो जब म्यूजिक चेंज हो गया तो हमें लगा कि यार ये करियर भी तो है, क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, रेगुलरली गाने कर रहे हैं। सो फिर ना एकदम से मेच्योरिटी आ गई, हाँ, और उम्र भी वो नहीं रही टॉर नाल छड़े वाली, है ना। लाइक व्हेन यू आर लिविंग इन अ फ्लैट विद 5 बॉयज, यू आर प्लेइंग क्रिकेट इनसाइड अ हाउस, इवेंचुअली यू नो यू डोंट डू दैट एनीमोर, एंड यू कांट फेक दैट आइदर, नहीं नहीं, यू नो, यू कांट एक्ट लाइक एन ओवरग्रोन चाइल्ड। करेक्ट। तो फिर थोड़ा जो साउंड का ट्रांजिशन था ना, तो वी स्टार्टेड डूइंग ड्रिल म्यूजिक, वी स्टार्टेड यू नो वर्किंग ऑन इंटरनेशनल साउंड्स। उसमें से गाना रूबिकॉन ड्रिल निकला, उसी में से गाना चेक कर निकला, एंड देन ऑल द नो रीजन। तो फिर उस तो मैसेजिंग नहीं गई भाई, नहीं गाल So नहीं that- कटनी, यही बड़ी बात है। आपने इतनी प्यार से बोलते हो आप हाँ। उन बंदों को, जितने को बोल रहे हो अपने हाँ, कि उसमें, गाल नहीं गाल नहीं कटनी, कटनी। गाल। इसके पीछे भी कहानी थी एक गाना था कि 10 ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ, ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਨੂੰ। ओके। तो ये गाना था विनयपाल भुट्टर भाई का, जिनका मैंने पहला म्यूजिक वीडियो किया था। लाइक आई यूज्ड टू लव हिज म्यूजिक, आई स्टिल डू। तो वो ਜਿਹੜੀ लाइन सी ना कि तुझे तेरा खास मिल गया जिसके लिए तूने ये आम सा बंदा छोड़ दिया था। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਡੀ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਸ ਦੇ ਲਈ, कि मैं खास हो जाऊंगा एक दिन। सही बात। तो वहां से वो निकला। तो ऑब्वियसली देर बट क्योंकि हर बात को आप ऐसे सटली भी नहीं कह सकते जैसे आम जे मुंडे में कही है, बिकॉज यू नो यू आर अपने शो पे जाना एंड एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग इन अ क्लब, दे हैव टू डांस एंड एवरीथिंग। तो बात वही रह जाती है, उसका चेंज हो जाता है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ V8 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ V8 ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ SUV ਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੈਡਾਨ ਚ ਹੈ, बस। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो हाउ डू यू स्टे अहेड इन लाइफ, मतलब इज देयर अ स्ट्रेटजी? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ
ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। SRK का नाम बोलता हूँ तो क्या दिमाग में आता है सबसे पहले? He himself said it rightly कि he is the last of his kind. Yeah. But you will never see that stardom again. और दूसरा ये भी है भाजी, जो कैरेक्टर्स SRK ने प्ले कीते ने ना भाजी, वो सिर्फ मैस्कुलन नहीं सी, वो वनरेबल भी सी, वो रिलेटेबल भी सी, वो इनोसेंट भी था सी। आदमी। हाँ कि क्योंकि आप सिर्फ ऐसे ही थोड़ी हो, हाँ। आपके डाउन मोमेंट्स में है तो बड़ा रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते सी, है ना। देखिए क्या है कि हमारे दिमाग में जब शाहरुख खान बोले आप तो और स्टे हेड बोले तो कैस्ट्रॉल ले जाता है, क्योंकि ये जो हाँ हम जी। एडवांस्ड से फुल सिंथेटिक हाँ इंजन जी। गिव्स 40% बेटर परफॉर्मेंस फॉर आवर व्हीकल्स। ओके, तो हम लोग इंजन जो ओजी है अपनी गाड़ी का, कैस्ट्रॉल दी एड। देखिए परफॉर्मेंस अगर हाँ आपको जी। टेस्ट आउट करनी है गाड़ी की तो कौन सा है आपका रूट जहां पर आप इसकी ट्रू परफॉर्मेंस निकाल पाते हो गाड़ी So, की? buddy, the day I bought this car, हाँ। we did a 1500 kilometer run. हाँ जी, तो मैं घर नहीं ले गया गाड़ी, मैं घरे थोड़ी I put a lot of kilometers on it. It's already done 2000 kilometers. What a wow, हाँ yes. जी, so I drive my cars. The other cars, my G-Wagon, I've driven it for 40,000. Yeah. I drive my cars. Land Cruiser, I drove for 60,000 since I bought. So I really like to drive. क्या बात तो मैं दिल्ली से सीधा गया जयपुर हाईवे। आई वेंट टू जयपुर, फ्रॉम जयपुर वी ड्रोव अनदर आवर आगे, और जयपुर से सीधा मोहाली, मोहाली से पंजाब। सो वी लाइक वेंट ऑन अ प्रॉपर ड्राइव। वेरी कूल। एंड आई थिंक इंडिया हैज सम अमेजिंग हाईवेज भाजी। केड़े ऑटोबान हाँ जी, इंडिया दे कमाल दे हाईवे ने। गाने आप कभी गाओगे ये सोचा था? नहीं भाजी, म्यूजिक केम लाइक एक्सीडेंटल टू मी। Yeah. लाइक आई नेवर वांटेड टू बी अ सिंगर, आई वांटेड टू डू अ सॉन्ग। हाँ मुझे शौक था कि यार एक दिन गाना जरूर करेंगे। हाँ जी। तो मैं ना अपने इंटरव्यूज में ये हमेशा बात बोलता हूँ कि लोगों के ना गानों से फैंस हैं, मेरे फैंस से गाने हैं, क्योंकि आई यूज्ड टू डू म्यूजिक वीडियोस, आई यूज्ड टू फीचर इन वीडियोस, लाइक पीपल न्यू ऑफ मी, लोगों को कैमियो पता करते थे था। आप पहले तो बड़े। हाँ, तो मैं खुद वीडियो डायरेक्ट करता, उसमें थोड़ा सा कैरेक्टर करता था। हाँ। तो पीपल न्यू हु आई वाज, एंड आई वाज वेरी लाइक ऑन सोशल मीडिया, एंड आई वुड टेल माय फैंस कि यार मेरा गाना करने का है भाई, गुरु घर आ गया। अच्छा, तो लोगों को पता था मैं गाना करना चाहता हूँ, तो मैं स्नैपचैट डाल देता था कि यार देसी गुरु वाले मेरे गाना नहीं करते, उन्होंने कहो मेरा गाना करना। तो मेरे फैंस देसी गुरु वालों को मैसेज करते थे कि यार परमीश का गाना क्यों नहीं कर रहे आप, परमीश का। तो मुझे गोल्डी का फोन आता था, ओ यार कर दांगे, तू स्नैपचैट ना पाया कर ना, लाइक पीपल मैसेज आ। और जो मेरे ओजी फैंस हैं, ये हम गाड़ी में आप ही के कारण बैठे हैं, सीरियसली। हाँ thank you, जी, ये वाहिगुरु दी मेहर है, ਤੁਹਾਡਾ प्यार है। तो फिर एक गाना हमने बनाया, आले चक में आ गया, and that song went viral. Then like क्या people था really, थॉट क्या था? और 5D पे शूट किया था मेरे को सुनने में आया आप लोग। अरे पाजी वो तो बहुत कम, उसमें ना आईफोन के भी शॉट्स हैं। हाँ हाँ। आपको चलो मैं आले चक में आ गया की स्टोरी बताता हूँ। गाना बन गया और मुझे श्योर था कि यार मैं को आई एम नॉट अ सिंगर, आई डोंट नो हाउ टू सिंग, तो लोग गालियां निकालेंगे बहुत। तो मैंने लाइव पे थोड़ा सुना दिया, बट आई डिडंट ऑफिशियली रिलीज इट। ओके। That live version of the song went viral and people downloaded that live version and they Yes. would play it. तो मैं जहाँ भी जाता था तो वो मुझे लाइव का सुनाते थे। तो मैंने फिर रियलाइज किया कि यार लोग सुन तो रहे हैं, गालियां नहीं पड़ रही। कहाँ गा रहे थे आप ये बैठे बैठे? नहीं, स्टूडियो से। स्टूडियो से गा स्टूडियो रहे में थे? जैसे गाना डब किया, उसकी डमी बनी और उसी को वहीं से लाइव हो गए, क्या बात है। एंड देन सुना दिया फेसबुक पे, क्योंकि ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि कोई मोनेटाइज वगैरह करना। तो आले चक में आ गया का जब शूट कर रहे थे, तो वो क्योंकि मैं म्यूजिक वीडियोस करता था, तो आई वुड बी ऑन सेट्स ऑल द टाइम, किसी और के गाना कर। तो जब मैं उनका वीडियो शूट खत्म कर देता था, तो मैं कहता था कि क्रू दो को shot कि मेरे लगा लेते। हाँ, तो हमने थोड़ा यहाँ शूट किया, थोड़ा यहाँ शूट किया। तो हम गए थे जॉर्जिया, मेरी फिल्म थी रॉकी मेंटल। तो जब रॉकी मेंटल का शूट करने गए जॉर्जिया, वहाँ शूट करके वापस आ रहे थे, तो वहाँ ना लोग चलो मैं बता देता हूँ, दे स्टॉप टू टेक अ लीक, ओके। है ना कि कहीं, और वहाँ बहुत अच्छा एक सनसेट का वो व्यू था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मेरे को कैमरा भी है नहीं, मैं की करा था। जो हमारे फिल्म के जो द गाय हुए शूटिंग, आई वाज लाइक यू टेक माय फोन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक एंड यू टेक अ shot on my That iPhone. is the same shot. So आले चक में आ गया, that shot was taken on an iPhone and it was such a shaky shot, but But it's a beautiful shot. but I made that song with so much passion. I gave it my best कि जहाँ जहाँ मैं गया, जो जो अच्छा शूट किया, क्योंकि मुझे था यार कि मेरे फैंस देखेंगे ये गाना, तो मेरा पहला गाना था। सो आई वांटेड टू लाइक गिव इट एज विजुअली इतना जो भी मैं बेस्ट कर सकता था विद इन द रिसोर्सेज दैट आई हैड। आज भी ऐसे ही होगा ना भाजी, लाइक यू डू 15-20 सॉन्ग्स, Yeah. उसमें से 5 गाने चलेंगे, 5 नहीं चलेंगे, 5 मीडियोकर हो जाएंगे। मैं अपनी कोट इन कोट सक्सेस को या अपनी काम को अपना बॉस नहीं बनने देता, Fair enough. कि वो डिफाइन नहीं करेगी कि मैं क्या करूंगा।
My success will not define what I eat, where I live, how I live, what I wear. You know, मैं सक्सेस को डिग्गी में रखता हूँ कि भाई मेरी है, तू जब मैनू चाहिए होगी बाहर आ जाई, तू डिक्टेट ना करी मैं की करना। क्रिएटिवली सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि कमर्शियली सेटिस्फाई आप हो ही नहीं सकते। If you start looking at your success based on how well your songs are performing, वो तो भाजी किसी भी ड्रग तो माड़ा ड्रग है। हाँ, नहीं तो ये बताओ कि जो आप म्यूजिक वीडियोस एक तरफ, पहली फिल्म, हाँ जी, क्योंकि आप जब भी अपनी विलनस चीजों के लिए भी जाने लग गए, हाँ जी, तो वो गानों में वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि तो बाजी ऐसा था ना कि अभी हीरो तो सिंगर होगा, हाँ, तो कैरेक्टर तो मेरे पास विलन का ही बचा या हीरो के दोस्त का। माई कैरेक्टर्स दैट आई कुड प्ले वर वेरी लिमिटेड। हाँ जी, लेकिन उससे क्या हुआ, आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन फिल्म्स, बट आई न्यू दैट because I am the director of the song, I kind of have the command कि अपने कैरेक्टर को कितना villainous तक पुश करना है। हाँ, and I'm the storyteller, so I know how to place my character. But obviously once you generate X amount of hype, है ना, तो आपको पिक किया जाता है फिल्म में यूज करने के लिए, because you know you bring आप in, उनके उस वाले उसमें फिट बैठोगे, आप certain audience को साथ में लेके आ रहे हो। हाँ, एंड देन मुझे ना विलन के बहुत कैरेक्टर्स आते थे कि बस कि यार ये बंदा बड़ा हाइप में है गानों में, इसको लेके आता है, हीरो इसको मारेगा और बस। हाँ, तो दैट्स व्हेन आई लर्नड कि ना कब करनी है। तो आई सेड नो टू सो मेनी फिल्म्स, मतलब बड़े पिक्चरों के ऑफर है। हाँ, और लाइक विद मेजर लीड्स जो वेरी रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, द डायरेक्टर्स वुड थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ वेरी कमर्शियल एंगल कि यार ये बंदा वायरल है, ये गानों में आता है, इसको विलन ले लेते हैं। सही बोले। बट आई सेड नो कि यार ये मैं नहीं करना। हाँ, अब मैं कर सकता हूँ बिकॉज नाउ पीपल नो आई एम एन एक्टर, बट हैड आई डन दैट देन तो मेरी इंट्रोडक्शन ही उस कैरेक्टर से होनी थी। सो इवेंचुअली आई गॉट अप्रोच्ड फॉर रॉकी मेंटल, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। और उसकी भी बड़ी कमाल की स्टोरी है कि जब मुझे फोन आया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट अ कॉल फॉर द मेन लीड। तो जब मुझे फोन आया कि बाजी फिल्म है, मैं कहा बाजी नहीं करनी जी, क्योंकि सब रोज फोन आते थे और फिल्म पाजी सुन लो एक बारी, वो बताते थे कि यार ये तेरे मार पड़ेगी एंड में, और फिल्म तेरे करेक्टर बढ़िया। तो आई हैड स्टार्टेड सेइंग नो कि मैंने करनी ही नहीं फिल्म। नो, तो वो कह रहे पाजी मिल लो, मैं कहा जी मैं नहीं करनी फिल्म, मैं कहा जी मैं तो हीरो ही करूँ, ये मैं करूंगा। क्या बोले फिर? बोले ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮਿਲਤਾ ਲੈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀਰ, ਸੋਹਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਖਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼, ਹਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਵੀਰੇ? ਹਾਂ, ਦਿਖਾ क्या ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸੱਟ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਠੀਕ, ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਕਿਤ, ਕੀ ਕਰਦਾ? मैं काम करता जी। चल ठीक है, लव यू सोने, थैंक यू भरा, थैंक यू। आप चल करा ला, आ जा, करा मिनट ला हुन। उन्होंने टैटू बनवाया हुआ है आपके लिरिक्स का? नहीं, मेरे भी सेम टैटू है थे। आपका सेम टैटू? हाँ जी, सेम है। हाँ जी, ओके, चल ध्यान रखी, वाहिगुरू मेहर करे, गॉड ब्लेस यू। ओके पुत्र, और तैनू भी मुबारक सोने, लव यू। मेरे को बताओ, पहला जो म्यूजिक वीडियो का पिच कैसे किया आपने? हाउ डिड यू गेट दैट गिग? पहले मैं गोस्ट डायरेक्ट करता था, ओके, बन जाता था। एडी कुछ नहीं किया था? नहीं, एडी किया मैंने। तो पहले मैं ऑस्ट्रेलिया से टाइम ऑफ लेके इंडिया आता था और यहाँ एडी करके जाता था या अपने ऑडिशंस दे के जाता था, फिल्मों में कैरेक्टर्स पिच करता था। तो 2-3-4 साल मैंने ऐसे स्ट्रगल की। लाइक कितने पैसे पाते थे एडी? एडी को तो नहीं मिलता था भाजी, काम ही मिलता था बस। हाँ, लेकिन हाँ, और लेकिन सीखा बहुत कुछ। डीओपी मैं ना पहले फ्रेम देखता था, फिर भाग के लेंस का नंबर देखता था। तो मुझे आई रिमेम्बर दैट डीओपी वाज सो जेनरस। वो बोले अरे पूछ लेना, समझा देता हूँ। तो मुझे उन्होंने सेट पे समझाया कि 100 लेंस कितना जूम जाएगा, 50 क्या है, ब्लॉक लेंस क्या है, जूम लेंस क्या है, वाइड क्या है, क्लोज क्या है। तो इतना कुछ सीखा मैं। लेकिन 2-3 साल के बाद मैं रियलाइज कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी, काम नहीं होगा। देन आई वेंट टू मुंबई, 1.5-2 साल मुंबई स्ट्रगल की। कहाँ रहे? मुंबई मैं गुरदास मान साहब के जो हिज सन, ही लुक्ड आफ्टर मी, गोरिक वीरा। हाँ जी, तो गोरिक वीरे ने मैंने बहुत गाइड किया, उन्होंने मैंने बहुत समझाया। फिर मुझे बॉम्बे में हिंदी सीरियल मिला। क्या बात है? और मैंने वो मना कर दिया। क्या नाम था? मैं वो बता नहीं सकता। अरे यार। पर मैं ऑफ कैमरा दसूं, मैंने वो टीवी सीरियल को ना कर दी। तो मुझे, हाँ, और मुझे सबने कहा कि तू टीवी सीरियल मना है। मैं क्या, मैं पंजाबी काम करना है, मैं तो पंजाब च काम करना है। फिर वो बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं लग गया कि अगर बॉम्बे में काम मिल गया फिर
पंजाब बाकी जगह जाना पे मुश्किल level के आगे चला इजी जाता हो है। जाएगा। Yes, 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 yes। लेकिन जब वहाँ टीवी सीरियल मिला तो आई वाज लाइक नो आई विल गो बैक टू पंजाब। बड़ा सो परफॉर्मेंस समझ सकते थे उससे कि भाई परफॉर्मेंस के ਪਰ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ YouTube ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਅਸੈਸ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਊਂਗਾ। वेरी गुड वेरी गुड। ਤੇ एंड देन आई गेव अप दैट, केम बैक टू पंजाब एंड आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग म्यूजिक वीडियोस। तो वो 3-4 साल पहले ना हर ट्राई फेल अल्टीमेटली आई वाज लाइक यार खुद करते हैं। सो स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक वीडियोस। तो खुद पिच करते थे? हाँ, तब मैंने विनयपाल बुट्टर भाजी ने पंजाबी सिंगर, उनका गाना था दूजा माफीनामा, वो किया था। पहला म्यूजिक वीडियो था जैसे ड्रग्स के ऊपर, एसिड अटैक्स, वो ऐसा थोड़ा मतलब क्योंकि थिएटर वाली बैकग्राउंड थी तो यू नो तो थोड़ा वैसे था। तो वैसे बहुत गाने किए और फिर वो नहीं चले। और फिर मुझे लगा कि भाई हाँ, क्योंकि उनकी उतनी लाइक दे आर वन टाइम वॉच, यू कांट सी अ मैसेज सॉन्ग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। फिर उसके बाद मुझे लगा बात नहीं बनेगी, अब काम नहीं चलेगा। फिर मेरे पास एक गाना आया, निंजा मेरा दोस्त मेरा भाई ठोकदा रहा, उसकी म्यूजिक वीडियो करी और वो फटी, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, तो उन्हें तक पाती, वो गाना निकला। तो एंड उसके पीछे सबकी कमाल की स्टोरी है कि जब वो गाना आया, आई स्वेयर एट दैट टाइम आई हैड डिसाइडेड टू गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगा यार बस हो गया जितना होना है, कि ये नहीं बनेगा कुछ। लेकिन वो गाना इतना सक्सेसफुल हो गया, तब मेरी रिटर्न टिकट बुक थी और वो गाना रिलीज हुआ रिटर्न टिकट के पहले, और मेरे पास इतना काम आ गया कि मैं यार टिकट होर ले लांगे। तो फिर मैं बैक टू बैक गाने करता गया। फिर उसके बाद एक गाना था गल्ला मिठियां मनकेर तौलक का। फिर उसके बाद तो फिर कितने गल जट्टा वाली, आदत, सब अच्छा हो गया, गुरु घर आ गए। भाई मैंने तो आपका सुना है आपके नाई भी हुआ करते थे बहुत ओजी। हाँ भाजी, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ओ नो। हाँ जी, वो बड़ा प्यारा बंदा। कहाँ थे ये एरिया? यूनिवर्सिटी के सामने थे। हाँ। तो वो भाई ना, उसको हम बोलते थे ना, एवें कट दे एनू, एवें कर दे एनू, एवें कर दे एनू, एवें, ठीक है ठीक है ठीक है। और उसने काट के ना एनू जिवें मर्जी कर ला। वो सबके बाल सेम करता था। अरे बट परमीश वर्मा बियर्ड लुक था भाई। मम्मी ने बोला था आपको, मैंने पता चला कि हाँ जी, बियर्ड रखनी है, कि शेव नहीं करनी है। मम केम फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो मैं पग नहीं सी बांधा ओबवियसली, ते मम्मी कहती तू दाढ़ी रख लिया कर। फिर मैं दाढ़ी रख ली, तो बड़ी रेयर रखते सी लोग। हाँ। ते और वही पहचान बन गई। तो देखोगे ब्लेसिंग हुंदी है एक तरीका, है ना, कि मां ने एक गल बोली ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਕरेक्ट, ਹੈਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੈਨਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। वाह 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 वाह। ये जनरली कितनी पोएट्री लिखते रहते हो आमूमन जिंदगी में? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ authentic ਬਚ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਮੈਂ I design a song, I create a concept, I take a few lines and I give it to the lyricist कि इस पे काम कर लो। Okay। पर मेरी पोइट्री सिर्फ मैं हड बीती ही लिख सकता हूँ, तो वही लिख सकता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मेरी ना बहुत ज्यादा पर्सनल डायरी वर्गी पोइट्री होती है। तो आप वो रेयरली हाँ जी बाहर बताते हो? हाँ, किसी ਨੂੰ कभी सुनाਉਂਦਾ नहीं है, वो वनरेबल थॉट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, doesn't go with my image। या यू क्या जिम ब्रो? हाँ कि नहीं हाँ पापा ठीक है, कुछ नहीं है। वो वाली भी बीच में बड़ी इमेज चली थी ना कि भाई ये तो भाई ये कैंड मुंडा है, ये अपना। हाँ कैंड तो है ही भाजी, पर आए है कि हर कैंड बंदा 24 घंटे थोड़ी कैंड रहता है, वनरेबल भी होंदा है, दुखी भी होंदा है, वो सैड भी होंदा है, वो कुछ लिखदा भी है। क्या भाई, कितनी गर्लफ्रेंड की कहानी बताई नहीं आपने पहले, क्या रहा सीन? ओ नहीं भाजी, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਜੌਬ ਵਾਲੇ। 18 साल की उम्र में तो इंडिपेंडेंट हो गया था भाजी। I have been making my own money, you know, paying for myself। How much were you making when you were 18? तब देखो $250-300 हफ्ते के। This was with bartending? So I started off as, you know, somebody who washes glasses behind the bar।
Okay. Then I started working in kitchen. And that also pays per hour. हाँ जी. Okay. Everything gets paid per hour. तो उसमें कितना मिलता था? So I did quite a few jobs at a time. तो कैसे होता है, बार में जैसे 4-5 घंटे की शिफ्ट मिली, किचन में 4-5 घंटे की शिफ्ट मिली, वहाँ कार वॉश था, कार वॉश पे 4-5 घंटे की शिफ्ट मिली. तो अलग अलग थे. जैसे अगर बार पे जाएं तो $15-17 भी मिल जाते थे. Tips $18. नहीं, ऑस्ट्रेलिया वुड पे वेल, लेकिन वो 3-4 घंटे की शिफ्ट होती थी. Okay. जब किचन में थोड़े कम मिलते थे, कार वॉश पे तो बिल्कुल $5 ही मिलते थे. आई मेक कलेक्टिवली आई वुड मेक लाइक $300-400. जैसे एक शिफ्ट में, क्योंकि बारटेंडिंग की शिफ्ट सिर्फ वीकेंड पे मिलती थी, सैटरडे पे, Okay. और संडे को वीड गेट पेड मोर मनी. ये वही लगा दो, लोगों को दिखा पाएंगे कि आप डाइनिंग टेबल से व्यू पाते हैं. हाँ जी, पिछों ला दो. बेस्ट है भाई योर व्यू. बट दिस एक्सपेरिमेंट, दिस यू शुड टॉक अबाउट इट, बिकॉज आप ऑटो ट्यून के बारे में भी बड़ा खुले से बोलते हो. हाँ आप जी. बोलते हो, हाँ वही लगता है. हाँ जी. आपको मैंने गाने बोला, आपने बोला भाई हम तो सीडी लगा के करते हाँ हैं. भाई, वो जो है तो है भाई. हाँ. और दूसरी बात, कमाल की बात ये है कि झूठ नहीं, मेरे फैंस ਨੂੰ भी पता है ना. मैंने अपने गाने भी तक ऑटो ट्यूनर है आड़ी साਡਾ, Yes. गाने हले बड़े होणगे. Yes. तो दैट मींस कि ठीक यार ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. पटियाला क्यों खुश है? मैं भी खुश हूँ आपके. भाई मेरी ना सबसे प्यारी मोमेंट थी, मैं जिस दिन गाड़ी लेके मैं ਗੇੜੀ ਲਗਾਣੇ ਗਿਆ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਤੇ. ਉੱਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਗ, ਥਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ, ਤੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ. ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 99.99999% ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ. Do you get down and just look at the engine and think कि एवरी डे क्या engineering है? एवरी डे. क्या बेहतरीन सो मेरा रूटीन है कि मैं जितना मर्जी बिजी, जिन्ने मैं राती 4 बजे भी घरे आया, मैं कार ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ. आप लोगों को मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज दिखानी जरूरी है, इनकी डाइनिंग टेबल से जो व्यू है आज के घर के अंदर. हाँ जी भाई, दिखाओ क्या ਹਾਂਜੀ, दिखा रहे हैं आप? ਇਹ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦਾ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਵੀ these are selected magnets out of all the places that we've been to. This isn't जहाँ गए हैं, ये जहाँ की मेमोरीज हैं. लाइक दिस इज पाम स्प्रिंग्स, न्यूजीलैंड, मैनली बीच. क्या है? सो दिस इज मैनली बीच. यहाँ मैं काम करता था, जिस बीच पे मैं रहता था मैनली, क्या करते थे आप? जहाँ बार टेंडिंग करता था मैं, तो ये वही बीच है. और अगर आप ये जो ग्रीन ब्लू टॉप देख रहे हो, इसके ऐसे 3-4 छोड़ के पीछे मेरा रेस्टोरेंट था जहाँ मैं काम करता था. क्या नाम था? Ivanhoe Hotel. Oh wow. Ivanhoe. And then I had some amazing stories in Banff. Yeah, there's two of Banff. हाँ जी, तो मैं वैंकूवर से बैंफ तक ड्राइव करके आए थे. Oh. भाई ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਨਾ. बैंफ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ. ये snow, Beautiful. Snow जब गिरी हुई थी नहीं, तब? स्नो सीगी, पर the roads were clean. Just had the best experience. What were you driving? We were driving a Ford 350 Raptor. Raptor. Oh. हाँ, ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ Beast. ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ. ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਹ 'ਚ. और ये And then Caesars was Vegas, and let's not talk about it. What happens in Vegas has to stay in Vegas. It has stayed on the top. One last question about it. सिद्धू मूसेवाला पाजी के साथ जो हुआ, do you miss him? Had you spoken to him? हाँ जी, like सिद्धू was a very dear friend of mine. जो सिद्धू ने पहला गाना जो लिखा था ना as a lyricist, वो मैंने ही डायरेक्ट किया था. क्या बात कर? हाँ जी. फर्स्ट सॉन्ग ही रोट कमर्शियली, उसका नाम था लाइसेंस, और वो गाना निंजा ने गाया था, और उसको मैंने ही डायरेक्ट किया था. एंड आई मेट हिम ऑन द शूट. तब वो ऐसे प्रोफेशनल सिंगर नहीं था. सो अब नोन हिम सिंस देन ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा. तो जब मैं कनाडा भी गया तब भी मैं मिलता था. सो आई काइंड ऑफ सॉ हिम ग्रो एज एन आर्टिस्ट, एंड ही वाज वेरी टैलेंटेड. तो क्या बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ आपका क्या फन मेमोरीज हैं, कुछ वो शेयर करो. हाँ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ 295 ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁਣਨਾ. ਸੋ ਆਈ ਸੈਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕਾਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਫॉर ਅ ਡਰਾਈਵ, ਐਂਡ ਆਈ ਪੋਸਟਡ ਅ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਂਟ ਹਿਮ ਸਨੈਪਚੈਟ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ. ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ. ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੈਵਰ ਵਾਂਟਡ him to feel that because he's such a successful artist, I'm associating with him.
but our association was way before, you know, he became the artist. तो हमारा जो पहले जैसे जो conversation थी was very personal, very respectful. तो वही बात में रही. And for मेरे साथ like he was always the same guy who came on that set. He उतना ही वो humble था, उतने ही प्यार से हाँ जी ਵੀਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਇਫ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੈਸੇजेस ਲਾਈਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇजेस ਸੀਗੇ. ਸੋ ਵਿਦ ਮੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਮਿਸ हिम. वी मिस यू. काश आप हम कभी शो पे ला पाते. बट इस घर की मैंने सुना है बड़ी मेमोरीज हैं. ये ओजी घर है जहां आप बड़े हुए. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ रेनोवेट करता है ਇਹਨੂੰ. सो जो हमारा भी जहाँ हम जा रहे हैं जो ड्राइंग रूम है हमारा दैट यूज्ड टू बी माय बेडरूम. ये वहां नहीं चलेंगे बट आपका जो ओजी बेडरूम ओजी रूम था वो दिखाओ. ओजी रूम ही दिखाओ ना वो ਹੁਣ ड्राइंग रूम बन गया. आ जाओ. सो दिस इज अ ड्राइंग रूम you could say which used to be my bedroom. दिस इज इट. और ये मेरी अलमारी थी. इसमें मेरे कपड़े होते थे. आजकल इसमें पापा की बुक्स हैं. यार पापा बहुत साहित्य के प्रेमी लगे. ये तो उन्होंने वर्किंग बुक्स ना शो यू माय डैड्स लाइब्रेरी अपस्टेयर्स. Oh, really? हाँ जी ही हैज अ ग्रेट लाइब्रेरी. तो ये आपका पूरा रूम बेड कहाँ पर होता था? ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ. यस. ਇੱਥੇ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ मेक सेंस. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ. ਉਹ ਮੇਰੀ घर में बहन की शादी है अरे वाह. ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇੱਥੇ. ਔਰ this is my dad's sort of working space. बहुत सुंदर. and this is like half of the library. ये घर में वो बुक्स हैं जिन पे जो मतलब डैड की पर्सनल किताबें हैं जहाँ काम करते हैं. तो माई डैड हैज़ ऑलवेज बिन यू नो ही इज़ रिटन ओवर 100 books. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डन PhD अंडर माई डैड. तो ही वॉज द वन जो वो छोटे होते बात भी करते थे मुझसे. तो वो काफ़ी हमें बात करते थे. जैसे कविता नहीं होती कि है ना कि खाओगे जो तुसी खवाओगे. बट कितना कॉन्फिडेंस दे रहे थे पिताजी. बहुत भाजी मतलब तुसी देखो ना उनको सिर्फ ये था कि यार his heart is in the right place. He tries to work hard. It हो नहीं रहा. तो जब टीचर्स कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगा या इसका कुछ बनेगा नहीं, कहते मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है की करूँगा. ਤੁਹਾਨੂੰ की पता है की करूँगा. Like he had so much faith in me. He never really like let me down. है ना. तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ I was not planning to come back to India. It was him. But he goes ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੈ. ਮੈਂ ਘਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ. ਤੂੰ ਲੇਟ ਲੈ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ. ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਜ਼ ਵਰਡਸ. ਹੀ ਗੋਜ਼ ਆਈ ਓ ਯੂ ਦਿਸ. तू बहुत छोटी उम्र में बाहर चला गया, तू सेट हो गया, तू इंडिया आ जा वापस. So he called me back. I feel everything that I am today is because of his belief system. बाकी घर दिखाओ क्या क्या है और यहाँ पर. और इदू बाद किताबा ने जिम है. This is where I spend at least 5 hours of my day. यहीं हम काम करते हैं सारा. I get up in the morning, I come here. जिम है और यहीं काम. और ये काम है. तो मेरी टीम यहाँ बैठ जाती है, मैं इधर आ जाना. और मेरा जो हमारे डायरेक्टर है अगली फिल्म के, he also trains with me. तो वो भी साथ में जिम लाते ऐसे भी जिम लाते रहने. हाँ ये क्या नायाब रोहित शेट्टी टाइप के काम. बेस्ट लाइफ है भाजी. और आपको मेरा जो चंडीगढ़ वाला घर है अभी वो लाइक इट्स गेटिंग रेडी. तो हमने वहाँ अभी रहते तो हम है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया 2 कमरे बनाए जिसमें कोई भी रह सकता है. एक किचन और एक इतना बड़ा जिम, गैराज और ऑफिस. बट कितना बेंच कर लेते हो, क्योंकि मेरे को बहुत हेवी ड्यूटी वेट दिख रहे हैं भाजी. सो इनिशियली ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਣਾ. But the way I train by myself. So I prefer lifting weight that I can lift up myself and put it back myself. तो मेरा जो workout है has always been focused on my form because I have. हाँ तो मेरा and that's so it's like kind of a Smith machine. तो मुझे क्योंकि मेरा shoulder injuries, bicep मेरे tear हुए ने, like I have a lot of injuries. Overtrain करके. Let me show you something else. You might like this. So these are like my collapse. This is the book that I really love. I know you got soul. Have you read this book? So इस book में क्या है भाजी? Jeremy Clarkson talks about every single machine that he feels has a soul, like a Concorde, Rolls-Royce, है ना, flying boat, like SS Great Britain, AK-47, Zeppelin, B-52s. So जो machines उसको लगता है ना कि यार ये machine में ना एक soul है. तो उन books के बारे में ये zone आपका दिख के आ रहा है कि इसमें जस्ट आपको जो चाहिए वो है. ये फ्रिज के अंदर क्या है वो भी रहेगा चीज. भाई भी रिसेंटली वो सोबर हो गए, अब तो छोड़ दी यहाँ. तो बस
खाली है मैं भाजी डर डर के खुलवा रहा था। नहीं सोबर हो गए भाजी लाइक वी हैवंट हैड अल्कोहल इन अ वेरी लॉन्ग What are you saying? I was sober for 11 months. One good night of drinking will push me 5 days back. That's so true. ऐसे तो है नहीं कि 2 विस्की ਦੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਫਿਰ ਜੇ पटियाला ਖੋਲ ਲਈ ਬੋਤਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਨਾ पहली बार बॉम्बे जर्नी पे। नमस्कार साहब, डॉक्टर सतीश वर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया बेटा। आपकी बड़ी अच्छी बातें की, आपकी लाइब्रेरी देखी। ये ऐसे नमस्ते करते हैं या हमारे सामने कैमरे पे कर रहे हैं? नहीं, ये सच है। काम किया वरना पाँव कैसे थे बचपन में? ऐसा बेटा, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते अच्छे बच्चे, माँ बाप को अच्छे लगते हैं, टीचर्स को अच्छे लगते हैं, बहुत कूल होते हैं, समझदार होते हैं, पाँव को हाथ लगाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, 100 में से 100 नंबर लाते हैं। अगर 99 लाएं तो फिर तिरपाई हो जाती है। एक दूसरी कैटेगरी होती है जो इतने ही इंटेलिजेंट होते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं, उनके अंदर जो पढ़ाई छुपी होती है वो कोई पकड़ पाता है। वो शरारतें करते हैं, लेकिन शरारतें बहुत क्रिएटिव होती हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ छुपा होता है। वो पढ़ते हैं लेकिन वैसे पढ़ते हैं जैसे ज़िंदगी पढ़नी चाहिए। सो यू आर दैट टाइप ऑफ गाय। ये बंक वंक करते थे, इनकी कोई दोस्त थी, ऐसे आपको सब पता चलता था? यार करनी चाहिए, इसमें क्या शक है। तुम्हारे घर बंक वंक करते थे, दोस्त थी। आई रिमेंबर एक बार ना 11वीं क्लास में सारी क्लास ने बंक किया हाँ जी। और वो फिल्म देखने गए। ओके। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, घर पापा और अनु के वह सारे बंक करके फिल्म देखने जा रहे हैं कि मैं भी जा रहे हैं। वहाँ टीचर्स आ गए तो टीचर्स ने पकड़ लिया, उन्होंने घर फ़ोन किया कि ये तो बंक मारते पकड़े गए। मम्मी कहते हाँ जी मैंने पता है जी। मेरी 2 चीज़ें थी, मेरी चोरी ना पकड़ी जाती थी, तो मुझे था कि अगर बंक मारते मेरे घर वालों ने पकड़ लिया ना फिर कटाई हो ज़्यादा है ना, क्योंकि मेरे मम्मी बहुत खतरनाक थे। टीचर तो मैनू की कुटूगा जो मेरी माँ कुटेगी। सो मैं आप ही फ़ोन करके दस दूँ। आई रिमेंबर आई वॉज नॉट हैप्पी कॉलेज में जो पढ़ रहा था, तो अभी इसी घर के पीछे जो ये गली है, आई रिमेंबर मैं पापा ने क्या, मैं कहा पापा मैं गल करनी है तो और हम यहीं से घर का तब काम चल रहा था हमारा, और मैं ऐसे बात करते करते वहाँ पीछे पार्क तक गए। मैंने बताया कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो ही वॉज लाइक कि हाँ कोई बात नहीं, हमारे पास इतने पैसे हैं, तू सारे ले ले और चला जा। सो आई थिंक ही वॉज माई सेफ स्पेस। एक इसके स्कूल का जुमला बताता हूँ जहाँ से ये जानना चाहिए हमें कि टीचर कैसे होने चाहिए। मैं स्कूल का नाम नहीं लेता, तो ही वॉज जस्ट इन प्रेप 1। मैं दसता स्कूल, चलो कोई नहीं। तो प्रेप 1 का स्टूडेंट था, तो जैसे होता है कि पेरेंट्स को कॉल कर लेते हैं। अच्छा, कॉलिंग में हमेशा पेरेंट मीटिंग में जाता था, सबसे पीछे खड़ा हो जाता था कि मैं सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि लास्ट में मैं उसको कन्विंस कर लूँगा कि अच्छा बच्चा है। तो जब प्रेप 1 में था, जूनियर स्कूल, आपको तो याद नहीं होगा बेटा, वो हॉस्टल साइड में था। तो मैंने कहा जी बताइए क्या हर रोज शरारतें करता है, शरारत। मैं जी इस बार क्या शरारत की? कहते पंजाबी बोलता है। मैं कहा जी पंजाबी बोलता है, ये शरारत है, अगर नहीं बोलेगा तो मैं तिरपाई करूँगा। मैंने कभी नहीं की। नहीं, वो घबरा गई। नहीं वो पंजाबी बोलता है, हमें समझ नहीं आती। मैं जी क्या बोलता? कहती इसने बोला कि मैं तेरे मार के थप्पड़ बम्बू तारे दिखा दूंगा। बम्बू तारे दिखा दूंगा। मैं कहा जी, कहती है बम्बू तारे क्या होते हैं? मैं जी सॉरी मैम, यू आर ए फीमेल, अगर हम मेल होते फिर मैं दिखा सकता हूँ, समझा नहीं सकता। ये समझाया जा सकता है, दिखाया नहीं जाता। जितने लोग समझा सकते हैं कमेंट में समझा दीजिए, सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सुंदर, आपके बेटे की वजह से इतना नाम रोशन हो रहा है पटियाला शहर में। जब इतना फेम आप अपने सुपुत्र को होते हुए देखते हो, फेमस होते हुए देखते हो, तो वो फीलिंग कैसी होती है? लाइक हाउ व्हाट ऑल हैव यू फेल्ट? बेटा मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि ये आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे ने आपके बाद 30-40 साल इस दुनिया में रहना है, तो वो 40 साल वो कैसे जिएंगे उन्होंने डिसाइड करना, मैंने डिसाइड नहीं करना। मैंने कभी भी किसी तरह का मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, ना इसकी ना दूसरे बच्चे की, किसी भी, क्योंकि मुझे पक्का मालूम है कि जब ये मेरे बाद वाले 40-50 साल निकालेंगे तो ये बेस्ट सिटीजन वैसे होंगे जैसा मैंने बनने की कोशिश किया। बहुत। हम आपसे पिता बनने की बात कर रहे थे, कितनी ऐसी वाली इन्होंने कभी बोली थी जब बेटा खुद बाप बनोगे तो समझोगे, ऐसे वाला कटाक्ष आया था? हुणे भी कहते ने, हुणे इन्हां दा पक्का डायलॉग है कि कोई गल नहीं तेनों पता लग जूगा, और धीरे धीरे वो चीज़ महसूस भी होती है। थोड़ा आप इमोशनल हो रहे हो, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पहली बार आप लोगों के कारण हम ये महसूस भी कर पाए। जस्ट जनरली व्हेन यू हियर हिम टॉक अबाउट यू, व्हाट डज दैट मेक यू फील?
feels good. थैंक यू। मैं दोनों के बीच में बैठा हूँ यहाँ पर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरवेल्म्ड आई हैव फेल्ट एज अ पर्सन हु डज दिस शो। एक लाइन कहकर आपको ये इसका जो आंख में आंसू आया ना उसको बताना चाहता हूँ। एक पंजाबी की लाइन है कि जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा, प्यार च हार के जितते बंदे जित के नहीं हारदे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सेशन थैंक यू बेटे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। टॉप पे आए। ये नहीं साडे पप्पू जी, हाँ बाबू भाई, पप्पू जी हमारे कितने सालों से आ रहे हैं आपके पास? अरे हमारे दिल में बसे हुए हैं, तो मेरे को तो दर्शन करने का लोड नहीं है बाहर ला। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਕੁਲਚੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ। कितने हो रखे हैं? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਭਾਜੀ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੇੜੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਗਦ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕੋ ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖਿਸਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। कितनी उधारी होती थी ਤੇ आपकी? 50 ਰੁਪਏ मैं इसके 50 रुपए देने थे पप्पू के और मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। ओह। ये मैनू ना मेरे दोस्तों ने क्या करे, अरे परमीश नू फोन करो, मेरे 50 रुपए रहंदे ने। फिर मैं बहुत है ना। नहीं। फिर मैं वापस आके इन्हू 500 रुपए दिता। मैं कहा यार तेरे पैसे देने ने। सूप समेत। बेस्ट कुलचे भाजी पूरे हिंदुस्तान दे, पप्पू जी खवाओ। और आप कहानी बताओ कि क्या होता था स्कूल? तो मैं था, मेरा दोस्त था आसवंत, ही इज नाउ सर्विंग एज DSP इन साइबर क्राइम। हमारा क्या था, 10 रुपए उसको मिलते थे, 10 रुपए मुझे मिलते थे। तो और हम रहते थे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के अर्बन स्टेट आने जाने का 10 रुपए का ही तेल था, अगर धीरे चलाओ, अगर तेज चलाओ तो तेल। हाँ, तो हमारा था कि 10 रुपए का एक बंदा पेट्रोल डलाएगा गाड़ी में और दूसरा बंदा कुलचे खिलाएगा। तो हमारा रोज का था कि पहले हम बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते सीगे, तो फिर जेडे कदे हफ्ते में 1-2 बार जब 10 रुपए मिलते थे, फिर हम यहाँ आके कुलचे खाते थे। फिर कई बार क्या होता था, मन करता था कि यार 2.5 रुपए वाले 2 खाएं कि 5 रुपए वाला 1 खाएं। तो कोई बार 5 रुपए वाला खा के एक ही खोर हो जाए, फिर उधार करते सी ਅਸੀਂ ਪੱਪੂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਵਾਨੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ की। ਸੁਖਨ ਚੱਕ, मैं मजाक नहीं कर रहा ਸੱਚੀ ਵਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ओ भाई। ਆਪਾਂ 2 ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ 5 ਕੁਲਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, मैं ਹੁਣੇ 5 खा सकता इसमें। भाई आपकी फिल्म की एक लाइन है, दिल दिया गल्ला, जो आपने जिक्र किया अभी उसी की, कुछ मोमेंट लाइफ में अपने रखने चाहिए, हर चीज़ डिस्प्ले पे नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है भाई। और ये लाइन कहते समय कितना आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये आप जीते भी हो क्या, और ये लाइन से के बाद क्या आपने इसको सोचना चालू किया कॉन्शियसली? दिल दियां गल्लां came right after that 2018 incident। तो वो सारे जो इंसिडेंट की मेरी जो लर्निंग थी ना, वो ये थी कि मैं अपनी सारी लाइफ ना सोशल मीडिया पे जी रहा था। तो जब मैं अकेला था हॉस्पिटल में, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मैं तो अपने माँ प्यो भैन भरा दोस्त मित्र किस नाल कोई एक पल ही नहीं बताया। वो वहाँ से रियलाइजेशन आई। तो ईवन दो जोड़े कैरेक्टर्स ने, नताशा बड़ैच एंड लाडी, वो मेरे ऑल्टर ईगोज हैं। मैं ही वो स्टूडेंट था और मैं ही वो सोशल मीडिया वाला था, और जो फिल्म की कॉन्वर्सेशन थी वो मेरी ही रियलाइजेशन थी। एंड आई रोट दैट फिल्म अलॉन्ग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी डायरेक्टेड इट। तो वही उदों आई सी गल कि यार कुछ पल अपने लिए भी जी लो यार, कि ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਈਦਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਣਾ। सही बात। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦਾ। मतलब आप काफी वैलिडेशन लेते थे उससे? ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। Hi guys, welcome to Mashable by Parmesh Verma, powered by Castrol Edge। क्या बात है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ये देखिए ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਧ ਸਰਕਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है ना। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਲੈਬਸ। हाँ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਮਜ਼ਾ ਭਾਜੀ, तब साथ में मजे ही मजे। मजे ही मजे। ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ। भाई क्या गेड़ी रूट क्या होता था आप लोगों का, कहाँ कौन कौन निकलता था दोस्तों? ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ YPS ਤੋਂ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ, 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਯੂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ YPS। ਇੱਕ ਨਾ CCD ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ,
कुछ जगहों पर ही आप अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार ਨਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਾਰ ਹੈ, no modifications, nothing। Correct। ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੇਮਸ ਛੱਡਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਈਕ when you really Go for it। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ परफॉर्मेंस असली दिख गई। हाँ। तो भाई देखो, पटियाला एडिशन में एक चीज जो करनी होती है हमको, वो करते हैं जी। आपके साथ। जब दो दोस्त मिलते हैं यहाँ पर, तो वो कैसे बोलते हैं एक दूसरे को, और भाई क्या हाल चाल, क्या कर रहा है, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? कितना के भैया। ਅੱਛਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, हमने 10 दिन लगा के अपने घर के आसपास की जो सड़कें हैं ना, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਟੋਏ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਰਿਸਕ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। मस्त है। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਪੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ। ये देखिए, पेट्रोल हेड्स आफ्टर बाइंग अ कार, दिस इज व्हाट दे डू। रेकी ਹਾਂ ਰੈਕੀ रोड्स कौन सी सही है। ਸਹੀ ਆ। तो पटियाला के ऐसे क्या स्लैंग होंगे जो आपके अमूमन बोलते हो आप लोग दोस्त लोग। सो पटियाला में क्या है बाजी, ये ना पटियालवी जो लैंग्वेज है देख वही थोड़ी यहाँ मिक्स्ड है। Okay। मालवे दी, पुआधी, तो 4-5 जैसे थोड़े थोड़े एरिया के बाद लैंग्वेज चेंज नहीं हो जाती हर शहर की, हाँ। तो यहाँ ती बहुत बोलते हैं। ओके, मतलब ती सी की जगह पे हाँ। है ना, कि आ गया ती सी की जगह, आ गया तो वो ती। थोड़ी फनी है। और यहाँ जैसे इसमें कुछ शब्द हैं जो हिंदी साउंड करते हैं पंजाबी में, जैसे नाले नाले के गैल गैल। यस यस। तो पंजाबी लैंग्वेज जो पटियाला की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इट हैज़ एन एक्सेंट ऑफ इट्स ओन। क्या बात है। लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो दोनों प्रोफेसर थे पंजाबी के, तो मेरी जी डिक्शन सीगी वो थोड़ी स्टैंडर्ड डिक्शन रही है लैंग्वेज की। तो बट हिंदी आपको हमेशा से ज्ञात थी। तो भाजी मेरी हिंदी का बड़ा कमाल का सीन हुआ। तो पहले जो स्कूल में जैसे हिंदी पढ़ते थे तो हमारे पास 7वीं 8वीं तक ऑप्शन थी कि 7th हिंदी फर्स्ट क्लास से लगती थी, और 8th में आपके पास ऑप्शन थी हिंदी Third पंजाबी में language से करनी थी, हाँ। एक चीज करनी। तो आई ऑब्वियसली टुक पंजाबी बिकॉज माय पेरेंट्स वर पंजाबी प्रोफेसर्स। यस। तो हिंदी से ऐसे टूट गया मैं। फिर जब मैं मुंबई गया तब थोड़ा बहुत हिंदी बोलता था, थोड़ी बहुत ही, और जो मुझे शो भी मिला था वो भी एक पंजाबी कैरेक्टर का शो था। अच्छा। तो इसलिए मेरी हिंदी तब भी कोई खास अच्छी नहीं थी, अभी भी नहीं है आई थिंक। बट खाने की जगह जब आप बाहर जाते हो, मैंने सुना है आप प्रॉपर रेस्टोरेंट, प्रॉपर ढाबे में जाते हो, हाँ जी वो क्या है, कौन सी जगह है ऐसी? भाजी अगर तो देखो रेस्टोरेंट, इफ वी टॉक कि आपको अच्छा फूड क्या लगता है, तो बंदा कहता है मैंने चंगा लगता है, बट व्हाट इफ यू वर टू गो आउट, व्हाट कुजीन यू वुड प्रेफर, है ना। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੂਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਕੈਰੀ। मैक्सिकन फूड ना बड़ी रिस्की कॉल होती है, क्योंकि राजमा कुछ भी कर सकता है, उनका राजमा अपनी तरह नहीं पकाया जाता। एग्जैक्टली, और वो बहुत ज्यादा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि फर्मेंटेड ਹੁੰਦਾ, फर्मेंटेड ही राइट वर्ड है ना, कैंड कूंड ਹੁੰਦਾ कई बारी। आप लोग बताएं भाई, देखो हम एक्सपर्ट नहीं है, आप लोग बताएं क्या गड़बड़ होती है मैक्सिकन फूड में ऐसी जो हमारे पेट को जो थोड़ा सा, कई बार खराब हो जाता है, कई बारी बहुत बढ़िया रह जाता है। हाँ भाई सही बोले। हाँ, कई बार चिपोटले हैज आइदर रियली रूइंड मी, और you can have a very good tryped night। एकदम। हाँ, सही बोले। कई बारी तो you don't finish it and you're like oh shit, It's done it। oh हो गया हो गया सही बोले हाँ, भाई। इस चक्कर च अपना इटालियन ਵਧੀਆ ਪਾਸਤਾ ਵੂਸਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, भाई पर वो लेकिन उसमें अपने को डालना पड़ता है ऊपर से। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਾਰਬ ਲੋਡਡ ਤੇ ਫੈਟ ਲੋਡਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਢਾਬੇ ਦੇਸੀ ਢਾਬੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹੇ ਢਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਬੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। वो समझ से बाहर है भाई मेरे। ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੌਂਠੇ ਵਰਗੇ न ਹੋਣ ਭਾਈ। करेक्ट। ये पटियाला पैक का आविष्कार कहाँ से हुआ, आपको क्या लगता है? भाजी थ्योरीज है पटियाला पैक की। आई थिंक कोई मैच था कोई पोलो का, हाँ जी। और आई थिंक द पटियाला टीम गॉट द अदर टीम ड्रंक, है ना, बाय सेइंग कि ये पटियाला पैक है एंड इट्स अ 90 ml पैक। बट वी ग्रू अप अंडरस्टैंडिंग कि पटियाला पैक मतलब मोटा पैक। मोटा पैक। हाँ, ते साडे पैक फिर मोटे ही सी। यार भाई फिर पंजाबी म्यूजिक का मेरे को ये बताओ, हाँ जी जो फाड़ रहा है पूरे देश में, हाँ जी। दुनिया में, क्या है ऐसा, क्या प्योरिटी रखी हुई है पंजाबी म्यूजिक ने कि हमारे सारे आर्टिस्ट छा रहे हैं इस टाइम पे? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ,
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਦ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਇਤਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਰੈਕਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਬਿਗਰ ਨੰਬਰਸ ਨਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਹੈਜ਼ਨਟ ਡਨ ਦੈਟ। ਵਾਟ ਆਈ ਲਵ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਆਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਨੋ ਕਰਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਵੀ ਐਂਡ ਯੂ ਜੈਮ ਲਾਈਕ ਡੂ ਯੂ ਐਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੋਟਸ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਸਪੀਕ ਟੂ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਆਫਨ। ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਟੂ ਮਾਈ ਹੋਮ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਗਾਇ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। वो अच्छी बात है। हाँ जी, oh and I think now the same thing is being done in Haryanvi music also. Yeah. After maybe this, क्योंकि Punjabi music was a staple in Bollywood, हाँ जी। है ना, it was a standard. ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਨਸ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂडिंग, आई कुड बी रॉन्ग, Yeah, fair enough. म्यूजिक में ना भाजी रिकॉर्ड लेबल स्टेक होल्डर थे, हाँ जी। वो डिसाइड करते थे कौन सा गाना टीवी पे आएगा, कौन सा गाना रिलीज होगा, कौन से हाँ। गाने पे यूट्यूब पे आएगा। तो वो जहां से चल रहा था रिकॉर्ड लेबल, जिन ब्रेन से चल रहा था, उनकी कॉल थी। अभी जो है डेमोक्रेटाइज हो गया कि यार मेरा गाना मैंने अपने गांव में बनाया हाँ। और अपने यूट्यूब पे डाल दिया, बस। अच्छा है तो लोग सुनेंगे, नहीं अच्छा तो नहीं सुनेंगे। दैट्स व्हाट सिद्धू यूज्ड टू डू आल्सो। Yeah. वो अपने गांव में आराम से गाने बनाता था अपनी मन मर्जी के, और हाँ। पूरी दुनिया सुन रही थी उसे। Correct. तो जो वो फ्रीडम थी अपने कंटेंट को ओन करने की, अपने लिरिक्स को ओन करने की, कोई म्यूजिक के लिए इतना कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, लाइक यू कैन, यू नो, इंडिपेंडेंस जब आई तो उससे वो बड़े बड़े जो स्टेक्स थे वो हिल गए। हाँ, लोग डामाडोल हो गए थे। हाँ कि हुण की करिए। फिर मैं ला दो इंडिपेंडेंस, फिर हरियाणवी म्यूजिक दे विच भी चल की। बट हरियाणवी म्यूजिक में काफी रागिनी इंस्पिरेशन आज भी दिखती है। ਭਾਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਸੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ 뮤직 ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। सही में? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੱਕੇ ਵਿੱਚੇ ਤਾਊ, हाँ। ਹਨਾ, ਤੇ लट्ठों के साथ कमाल खड़ा है हाँ। सारे अपने ताऊ। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है, अच्छा फिर जैसे पंजाब के गाने हरियाणा के लोग सुनते थे, अब हरियाणा के गाने पंजाब के लोग सुन रहे वाह हैं, यार। क्योंकि कल्चर सेम है, क्रॉस पॉलिनेशन। बिहेवियर सेम है, वो अपने लगते हैं लोग। और अभी इतने कमाल के रैपर आ रहे हैं जयपुर से निकल के, राजस्थान से। नाम बताओ कौन कौन क्या? मुझे एक लड़के का नाम आई डोंट रिमेम्बर, उसका नाम है शायद वेनम, कुछ ऐसा है। उसका एक ड्रिल पे रैप था, मैंने सुना, क्या कमाल का रैप था, मुझे समझ कुछ नहीं आया, पर भाजी यू कुड टेल कि वो बंदा अभी रिसेंटली भाजी एक बिहारी रैपर सी मुंडा, वाह यार। और वो बिहार के बारे में गा रहा था। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, उसने गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिया कि पटना से गुरु गोविंद सिंह जी, मतलब वो अपने बिहार को लेके इतने प्राइड में कर रहा था। तो हर एक रीजन का जो एक आम लड़का है, जिसको मान लो इंग्लिश नहीं आती, जो मान लो जिसको हिंदी में वैसे नहीं गा सकता, लेकिन उसकी कोर लैंग्वेज में वो उतना ही ऑथेंटिक है, उस कोर लैंग्वेज में उसके पास उतना ही टैलेंट है। अब वो प्लेटफॉर्म इक्वल हो गया है, सही बोले है ना, कि आप जैसे हो भाई वैसे काम करो। कौन से रोड पे आ गए भाई, हम कहाँ पर ये हैं? भाई हम पटियाला से अब हम गांव जा रहे हैं। सो ये मेरा दोस्त है लाडी, हाँ जी। उसके गांव में जा रहे हैं हम। क्या बात ये है। मेरा गांव नहीं था, हाँ जी। लेकिन ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, पिछले 10 साल से इकट्ठे हैं, तो वी आर ब्रदर्स। तो आयरॉनिकली मैंने भी उसी गांव में ज़मीन ले ली। अरे वाह, तो पहले हम भाई थे, वो मेरा हुआ, अब मैं उसके गांव का हो गया, क्या बात, तो हमारा गांव भी सेम हो गया। क्या बात। तो खेती शुद्धि चलती है यहाँ पर? हाँ जी भाजी, क्या उगता है? ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, वाह। ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੁੰਡੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ वाह वाह। मुंडे जेडे उत्थे करते ने, ते वहाँ एक अलग सा सुकून है भाजी। जब गाड़ी लेके आया ना भाजी, तो ऑब्वियसली पंजाब का रोड टैक्स बहुत ज़्यादा, हाँ जी। so a lot of people when they buy cars they get like Yeah, चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन।
हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ जहाँ टैक्स कम है, पंजाब और मुंबई के टैक्स में बहुत फर्क है, हाँ। 1/3। तो जब गाड़ी ली ना भाजी, मुझे कम से कम 100 मैसेज आया होगा, वीरे पटियाले का नंबर लेना, वीरे पटियाले का नंबर लेना। इट वाज लाइक एन ऑर्डर यस फ्रॉम माय फैंस कि गड्डी च आपां पटियाले का नंबर लाना है। अभी हम लोग फार्म में जाएंगे, तो आप लोग अपनी परफॉर्मेंस टिप्स क्या है वो हमें कमेंट में बताएं, ताकि आपको एक साइड पिलो मिलेगा थ्रू भाई। एंड व्हाट ए वाओ, दिस बॉम्बे जर्नी पटियाला एडिशन हैज बीन एन एपिक वन। हम फार्म में जाते हैं, थोड़ी सी आपको चिल लाइफ, विलेज लाइफ दिखाते हैं। अभी चलो नेक्स्ट चीज देखेंगे, बट आप लोग को एक साइड पिलो चाहिए तो परफॉर्मेंस टिप्स नीचे कमेंट में दो। मैं तो भाई ट्यूबवेल बनाया करते। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਗ ਪੁਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੀਰਾਂ ਬੂਰਾਂ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ। हाँ। ਵਧੀਆ, कोविड ਵਿੱਚ बहुत फन किया है ना? हाँ जी, यूनिवर्सिटी के पास ही मेरा दोस्त है, हाँ। उसके गांव चले जाते थे हम वहाँ, तो उसके काफी बढ़िया स्विमिंग पूल था, उसने बनाया अपने उस पे। और कनाल में स्विमिंग ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, वो नहीं की? ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਡੀਪਰ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ You don't do it. I know just enough swimming to not die for the first 5 minutes, Fair enough. है ना, कि मैं इतना तैर लूंगा कि बचा लो करके मरूंगा। और आप डीप सी डाइवर नहीं हो, आप ना आप ना वो ना ऊपर वाले ना डाइवर हो। भाई, ना। आपको एयर से डाइव करना अच्छा लगता है। हाँ, I've done skydiving, yes. तो लव योर रिसर्च बोल रहा था। थैंक यू भाई, अरे भाई, you've done an amazing job, थैंक सच यू में। भाई। हम लोग सबका बड़ा कदर करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली बार हम लोगों ने इतना एक्सटेंसिव बॉम्बे जर्नी पटियाला एडिशन, कोई भी हमारा जर्नी एपिसोड इतना शूट किया, थैंक्स टू अरे नहीं, आप और आप सब लोगों की टीम। you आप लोगों ने हमें घर तक तो न्योता दिया ही, पिताजी के साथ बात करवा दी, हमको अच्छा लगा, बाय भाजी। खेतों तक ले आए। ये This is who we are, दृश्य भाजी, है। this is where we come from। कितना ऐसे रात को करके सो जाते हो और फिर अगले दिन सोचते हो अरे ये क्या क्या? कुछ भी प्रोड्यूस कर दिया रात को। अरे नहीं, हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ है हाँ। कि जब आप जोन में होते हैं आपको गाना बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हमने वहाँ जो खेत पे कमरा नहीं होता, हाँ जी, उसमें हमने छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है। क्या बात है। हाँ जी, तो उसमें साउंड प्रूफिंग करके वाह यार, गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो नॉट ऑब्वियसली नॉट द फाइनल ट्रैक्स, लेकिन 1-2 फाइनल ट्रैक्स भी यहीं पे। वहीं, हाँ, कि जैसे टाइम नहीं लगा स्टूडियो जाके रीडअप करने का, तो आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे आई विल शो इट टू यू। तो छोटा सा कमरा है, उसी को साउंड प्रूफ किया हुआ है उसने, बहुत सुंदर। उसी में स्पीकर्स हैं, उसी में माइक है, तो जब कुछ बढ़िया लगता है वहीं बना लेते हैं। थैंक यू मेरे भाई, Thank दिस हैज बीन ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द बॉम्बे जर्नी। आओ साइन करो आज वो हो पिलो, ताकि हम लोग आप लोगों को जो कोई एक लकी विनर होंगे उनको एक साइन पिलो मिलेगा भाई के द्वारा। आपको परफॉर्मेंस बतानी है अपनी गाड़ियों के लिए, क्या क्या करते हो आप?